Hello everyone, welcome to Science Math Point. Very good morning to again all of you. In this video lecture, we will do numerical problems based upon the types of function, okay, which is checking the one, on two, or you can tell injective, surjective, bijective, okay. So regarding that, we will do some more problem, okay, types of function. Okay, so before that, if you not subscribe my channel, so kindly subscribe my channel to get more update on the video. Okay, so let's do to start the problem. First question is given that so that the function f such that n tends to n, that means function is defined, there are two sets, okay. First set is natural set, second set is also natural set. That is the concept of this meaning. Okay, this mathematical statement का meaning है function is defined from natural set to natural set. You have to prove that the function is given what 2x. Function is 2x. You have to prove that it is 1 1, but not on 2. Okay, it is 1 1 but not on 2. So function is defined x tends to y. Already I have discussed in theory. That means x क्या है ना natural set. First set is natural set. Second set is also natural set. Okay. So what to do in this type of problem? First you write the given data. So given data क्या है? Before that first write solution. Okay. Given data क्या है ना? F define which set to which set, that is important. First you have to write this. Okay. So the function is defined here natural, that is important. अगर change हो गया z to z, integer to integer, अगर change हो गया real to real, the answer is also different. Okay, don't worry, I will do problem by changing set. So first thing, it is given that f such that n tends to n, and function is given that f of x equal to 2x, f of x equal to 2x. First you have to check 1 1 है कि और on 2 है कि. Okay, so first thing what to do, first to check 1 1. In every question try to write the given two things. Function is defined from which set to which set, and second is what is the function actually. So first check 1 1. So for 1 के लिए already I have studied the theory. You have to take f of x1 equal to f of x2, and you have to prove that x1 equal to x2. This is the concept for 1 1. Okay. So now what to do? And x1 x2, जो x1 x2 है किसका है? First set का एलिमेंट है. Okay. So first you have to write for all x1, x2 belongs to capital N. देखो capital X क्या है? Capital N, capital Y क्या है? Capital N. Okay, X first set, Y second set, N tends to N. So for all x1, x2 belongs to capital N, let क्या है ना f of x1 equal to f of x2. Take or you can take f of x1 equal to f of x2. First you have to take this. You have to prove that x1 equal x2. Now देखो f of x is what 2x. f of x1 क्या होगा? It is automatically 2x1, no doubt, equal to f of x2 क्या होगा? इसलिए 2x2, no problem. Now check करो 2 cancel हो गए नहीं? Yes, that means it is x1 equal to x2. After cancelling 2 it comes x1 equal to x2. This is our target. For 1 1 you have to prove that by taking f of x1 equal to f of x2. The result must be x1 equal to x2. Here it is coming, no problem. Hence it is 1 1. Hence क्या है ना? Hence it is 1 1. Prove हो गया. Okay. Coming to second, you have to check that onto. ये onto है कि नहीं? Onto. So onto के लिए क्या sufficient definition है ना? For all y belongs to y. Already I have told for all y belongs to y, small y belongs to capital set y, then there exists an element x, then there exists an element x in x such that f of x equal to y. This statement already I have told, just to remember. For onto you have to write this statement in each and every question. For all second element in second set, then there exists an element x in first set such that f of x equal to y होगा. जैसे कि range equal to codomain already I have told for onto. Okay.
So first thing you have to do in onto function for checking, first to take let y equal to f of x. क्या करेंगे ना, let y equal to f of x in every question first to take. Okay, so that means y equal to f of x क्या है, 2x है, यहाँ पे फंक्शन क्या है 2x है. What to do next? Just to find the value of x in terms of y. So x is coming y by 2 है कि नहीं. This procedure you have to do in every question when you are checking onto. Keep in mind, first you take let y equal to f of x, y equal to 2x, it is given that, and you have to find the value of x in terms of y. So x is coming y by 2. Now what is the target? For all y belongs to y, हमारा डेफिनेशन क्या है, फॉर ऑल y belongs to y. यहाँ पे y क्या है, कैपिटल x क्या है, कैपिटल N. So for all y belongs to, for all y belongs to, यहाँ पे y क्या है, n. Now tell me, y का वैल्यू क्या चूज करेंगे, फ्रॉम नेचुरल सेट यू हैव टू चूज ए नंबर. चूज करो 1 लो, 2, 3, जो भी लो, नेचुरल नंबर. सो x इक्वल, सपोज आई एम चूजिंग y इक्वल टू सपोज 3. जस्ट आई एम चूजिंग y इक्वल टू 3. नाउ x इज कमिंग व्हाट, 3/2 है कि नहीं. Now tell me, for all y belongs to natural number, x is coming natural number है कि, चेक करो, x is coming 3/2, it is not natural number, not belongs to n, इसलिए ये onto नहीं होगा. onto कब होगा, for all y belongs to second set. y का वैल्यू क्या लेंगे ना, सेकेंड सेट का एलिमेंट, बट द रिजल्ट x must be फर्स्ट सेट का एलिमेंट होगा. फर्स्ट सेट का एलिमेंट होना चाहिए द वैल्यू ऑफ x. ध्यान से सुनो, अगेन आई एम टेलिंग इन ऑन टू व्हाट टू डू, पुट द वैल्यू ऑफ y इन एवरी क्वेश्चन. फर्स्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y. y का वैल्यू क्या चूज करेंगे, सेकेंड सेट का एलिमेंट. सेकेंड सेट में जो भी दिया है, यहाँ पे n दिया है, अगर z देते हो यू कैन टेक -2, -1, नो प्रॉब्लम. अगर रियल होता तो यू कैन टेक √2, -5, 8, 9, जो भी. अकॉर्डिंग टू द गिवन सेट यू हैव टू चूज द वैल्यू ऑफ y. बट आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, देखो चेक करो जे x का वैल्यू क्या आ रहा है. अगर x का वैल्यू जो भी सेट गिवन दिया है और इसी से आ रहा है तो देन इट इज सेटिस्फाइड. बट यहाँ पे क्या ना, अगर देखो y का वैल्यू हम चूज करिए 1, 3, जो भी चूज करो, द रिजल्ट इज कमिंग x वैल्यू 3/2 और 1/2, बट दैट इज नॉट नेचुरल नंबर. दैट इज नॉट नेचुरल नंबर, इसलिए ये ऑन टू नहीं है. ओके, सो व्हाट टू डू, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या है ना, there not exist an element, then there not exist an element x in n. in फर्स्ट सेट क्या है, n, such that क्या है ना, f of x equal to y, such that f of x equal, that means there is no element in x. For all y belongs to n, y का वैल्यू n के लिए x का वैल्यू n नहीं आ रहा है, x का वैल्यू नेचुरल नहीं है, इसलिए ये ऑन टू नहीं है. क्लियर? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू चेक ऑन टू फंक्शन. Okay, so in every case first you put the value of y, whatever may be the value will coming for x, that value belongs to first set or not. Okay, hence you have to write it is not onto, hence it is not onto. Okay, so hence it is proved, clear हो गया. So this is the first question, how to check 1, 1 and onto. क्लियर? सो जस्ट टू नोट इट डाउन. कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था, सेकेंड क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर रहा हूं, देखो ध्यान से, व्हाट आई एम चेंजिंग. ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 आई एम राइटिंग. सो दैट द फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम r to r. जस्ट आई एम चेंजिंग द सेट. नेचुरल था, क्या किया ना, रियल नंबर कर दिया. गिवन बाय सेम फंक्शन f of x 2x, यू हैव टू प्रूव दैट इट इज 1, 1 एंड onto. ये 1, 1 भी होगा and onto भी होगा, 1, 1 and onto, और we can tell it is bijective. It is bijective function. Injective है, subjective है, 1, 1 भी होगा, onto होगा, that means it is also bijective. You have to prove that. देखो सेम चीज, कुछ भी नहीं चेंज है.
सॉल्यूशन f क्या है, r टेंस टू r, just to change the set r tends to r, real number to real number, same function. What I am changing, just to see 1 1 you have to check, first heading दियो 1 1, then on to, so first देखो heading क्या है 1 1. For all देखो क्या change है, for all x1 x2 you have to take two elements x1 x2 for checking the 1 1 function from which set, x1 x2 from which set, first set क्या है r है. For all x1 x2 belongs to r, take f of x1 equal f of x2, 2x1 same, 2x1 equal to 2x2, 2 to cancel, x1 equal to x2, hence it is 1, clearly it is 1. Okay, coming to on to, let y equal to f of x, no change, y equal to 2x or x equal to y by 2. Now what will change, you have to choose the value of y from which set, real number set, real set. So जो भी हम ले पाएंगे no problem. That real number means what? The sum all rational irrational number is real number. Root 2 no problem. minus 5 by 9, minus 3 by 6, minus 1, 0 जो भी लो. Whatever may be the value for y, x का वैल्यू क्या आ रहा है? रियल नंबर नहीं है कि नहीं? रियल नंबर है कि नहीं? Yes, it is real number. Clearly, just to think in your mind. हमें y का वैल्यू लेना है फ्रॉम रियल नंबर से. x का वैल्यू क्या आ रहा है? रियल नंबर है कि नहीं, फर्स्ट जज इन योर माइंड, देन यू राइट दिस स्टेटमेंट. क्या है? फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, नॉट देन फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेकंड सेट, देन देयर एग्जिस्ट माने जो भी एलिमेंट, जो भी आंसर आ रहा है ये एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं? यस, डेफिनेटली इट इज एग्जिस्ट. x का वैल्यू जो भी आ रहा है वो रियल नंबर है कि नहीं? यस. सो यू हैव टू राइट, देन देयर in previous question we have written not exist, but here exist हो रहा है. then there exist, बस इतना difference. then there exist an element x in which set? first set x in real number such that f of x equal to y, hence it is onto होगा. अगर not exist होगा तो नहीं, onto नहीं, but यहाँ पे exist हो रहा है इसलिए ये onto है. Hence it is proved, or you can write hence it is also bijective. It is also bijective क्योंकि 1 1 भी है और onto पे. Clear? So this is the second question. Just to note it down. देखो we are doing one by one problem. Okay? So मजा तो definitely आ रहा है. देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या चेक करना है ना, इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी. इंजेक्टिविटी मतलब सेम 1 1, सब्जेक्टिविटी मतलब 1 2. of the following functions I am giving 5 questions. क्वेश्चन नंबर 3 में 5 बिट है, you have, that means 5 questions you have to check इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी. बट देखो ध्यान से, फंक्शन आई एम टेकिंग 2, एक स्क्वायर फंक्शन, अदर क्यू फंक्शन, बट आई एम चेंजिंग सेट. फंक्शन में इंपोर्टेंट है क्या? सेट. कौन सा सेट हम ले रहे हैं, दैट इज इंपोर्टेंट. देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, एक्स स्क्वायर है बट सेट क्या है? नेचुरल. सेकंड क्वेश्चन सेम एक्स स्क्वायर बट इंटीजर टू इंटीजर, देन सेम क्वेश्चन रियल टू रियल. ओके. फोर्थ क्वेश्चन क्या है? क्यू फंक्शन, नेचुरल क्यू फंक्शन, इंटीजर टू इंटीजर. और यू कैन राइट ऑल्सो नंबर 6, नो प्रॉब्लम, आर टू आर सेम क्वेश्चन, योर चॉइस फॉर बेटर प्रैक्टिस. ओके. देखो we'll do one by one solution b to 1. Already I've told how to write. First thing you have to write two things. What? First thing is f क्या है? f is given that n tends to n. Function is given that x square function दिया है x square. Very simple question. First to check 1 1 है कि नहीं. इंजेक्टिविटी दिया है, जो भी वर्ड दिया है वही वर्ड ही लिखो, बेटर होगा. इंजेक्टिविटी दिया है, इंजेक्टिविटी, डोंट राइट 1 1. इंजेक्टिविटी योर चॉइस, 1 1 लिखो और इंजेक्टिविटी, नो प्रॉब्लम. इंजेक्टिविटी, सो इंजेक्टिविटी मतलब क्या लेना है? फॉर ऑल x1 x2, फॉर ऑल x1 x2 belongs to first set क्या है? n है. for all x1 x2 belongs to first set, take f of x1 equal to f of x2. same principle, I am not changing anything. f of x1 equal f of x2. f of x1 क्या होगा? x1 स्क्वायर होगा. x1 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ये x2 स्क्वायर होगा. ओके. नाउ just to take left side,
x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0 है कि नहीं? यस। और इट कैन रिटर्न एज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फंडा x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2, क्योंकि ये x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. नाउ this into this equal to 0, that means this can be 0 or this can be 0. okay, x1 equal to माइनस x2 होगा अगर this स्टेटमेंट 0 होगा, अगर this एक्सप्रेशन 0 होगा x1 equal to x2 होगा, है कि नहीं? दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट. x1 का वैल्यू एक माइनस x2 आ रहा है, एक प्लस x2 आ रहा है. बट टू प्रूफ 1 1 व्हाट इज रिक्वायर्ड? ओनली x1 equal to x2. only this part is required to prove 1 1. but here x1 का वैल्यू दो आ रहे हैं, एक प्लस x2 आ रहा है, एक माइनस x2 आ रहे हैं, बट बोथ इज नॉट डिफाइंड फॉर 1 1. बट देखो यहाँ पे सेट क्या दिया है ना, नेचुरल सेट, दैट इज इंपॉर्टेंट. सो नेचुरल नंबर में माइनस x2 डिफाइन नहीं है, ये तो सबको पता है. अगर x का वैल्यू 2 है, अगर x का वैल्यू 2 है, दैट मीन्स -2. सो -2 इज नॉट डिफाइंड ऑन n. देखो दिस क्वेश्चन इज कंफ्यूजिंग पार्ट, डोंट बी कंफ्यूज व्हाट आई एम टेलिंग, जस्ट लिसन. x1 का वैल्यू -x2 कभी भी नहीं होगा ऑन द सेट नेचुरल, ऑन द सेट नेचुरल. अगर x का वैल्यू 2 है, x2 का वैल्यू जो भी 3 है और -3, इट इज नॉट पॉसिबल. नेगेटिव नंबर इज नॉट अलाउड. सो यू कैन राइट हियर साइड में ब्रैकेट में, नॉट, इट इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड ऑन n. क्लियर? दिस स्टेटमेंट, व्हिच स्टेटमेंट? दिस x1 equal to minus x2 is not defined on natural, but it is defined. हमारा सेट क्या है? नेचुरल सेट है, it is defined on n. okay, so hence so therefore you can write x1 equal to x2. okay, single is coming, hence it is 1 1, hence it is injective. you can write 1 1 or hence it is injective. according to given word you can write injective or 1 1 जो भी. next we'll check on to or surjectivity, your choice. surjectivity देखो, surjectivity में क्या लेना है? let y equal to f of x, same funda and not changing anything. let y equal to f of x, y equal to x square, f of x is given x square, but you have to find the value of x in terms of y. that means implies that x equal to क्या होगा? square root of y होगा. क्या होगा? square root of y. that means for देखो y का वैल्यू पुट करेंगे, सो y का वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे? नेचुरल सेट से. फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो नेचुरल नंबर जो भी लो, द रिजल्ट इज कमिंग नेचुरल सेट है कि यू हैव टू चेक दैट. अगर y का वैल्यू सपोज 2 है, ध्यान से देखो, अगर y का वैल्यू 2 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा? √2 होगा. देखो y का वैल्यू नेचुरल के लिए वो x का वैल्यू जो भी आ रहा है, ये नेचुरल है कि ये नॉट नेचुरल, इट इज नॉट बिलोंग्स टू n, हेंस इट इज नॉट ऑन टू. दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट. अगर x का वैल्यू नेचुरल होता तो ये ऑन टू होता. ओके, सो क्लियरली फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n, y का वैल्यू नेचुरल के लिए x का वैल्यू नेचुरल नहीं है, इसलिए ये ऑन टू नहीं है. सो यू कैन राइट वेरी सिंपली फॉर्मेट, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, सेकेंड सेट क्या है? n. फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n, देयर नॉट एग्जिस्ट, I am not changing anything, there not exist an element, there not exist an element x in first set क्या है? n. in n first set n such that f of x equal to y, such that f of x equal to y, hence it is नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं होगा, hence it is not on to. okay, so ये one on, or you can write it is not surjective, it is not surjective, it is not surjective, as your choice. I am writing here injective, that's why I am writing it is not also surjective. clear? So this is the first question, how to check injective and surjective for function f of x to x square on the set natural set. देखो कमिंग टू ओके, फर्स्ट थिंग यू कैन राइट, नो प्रॉब्लम, बट जस्ट टू वेट. देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है?
जेड सेट है। सेकंड क्या है ना, देखो जेड सेट में क्या करना है, जस्ट टू सेम क्वेश्चन सेम आंसर, जस्ट टू चेंज द सेट, जस्ट टू चेंज द सेट। देखो क्या चेंज करना है, काम करो फर्स्ट नोट इन देन आई विल टेल। देखो सेकंड क्वेश्चन बिट 2 आई एम चेंजिंग द सेट, क्वेश्चन इज सेम बट चेंजिंग द सेट क्या है, नेचुरल था, यू हैव टू चेंज इट इंटीजर, नो प्रॉब्लम, जस्ट आई एम चेंजिंग इंटीजर z टेंस टू z। देखो क्या चेंज हो रहा है, सेम क्वेश्चन f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर दिया है, नो प्रॉब्लम, इंजेक्टिविटी यू हैव टू चेक फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू व्हिच सेट, फर्स्ट सेट क्या है z, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू z, टेक f ऑफ x1 इक्वल f ऑफ x2, सेम प्रोसीजर, आई एम नॉट चेंजिंग। देखो x1 इज कमिंग माइनस x2 एंड आल्सो प्लस x2, बट देखो माइनस x2 z मतलब इंटीजर, जस्ट आई एम चेंजिंग चूजिंग x1 x2 का वैल्यू 3, -3 डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऑन द सेट इंटीजर, डेफिनेटली इट इज डिफाइंड ऑन सेट इंटीजर। सो यहाँ पे x1 का वैल्यू 2 है, एक प्लस x2 भी है, एक माइनस x2 भी, क्योंकि बोथ आर डिफाइंड ऑन सेट इंटीजर। प्रीवियस क्वेश्चन में माइनस x2 डिफाइन नहीं हो रहा था ऑन द सेट नेचुरल, बट यहाँ पे बोथ आर डिफाइंड, दैट मीन्स हियर देयरफॉर x1 इक्वल टू both value is coming out plus x, other is minus x2, plus x2 minus x2, that means यहाँ पे x1 का वैल्यू x2 नहीं है, both वैल्यू है, इसलिए ये 1 1 नहीं है। 1 1 तब होगा जब x1 का वैल्यू सिंगल वैल्यू कम, that means here two values coming, that means hence it is not injective, it is not injective, it is not इंजेक्टिव। देखो सेट चेंज हो गया तो ये वो इंजेक्टिव नहीं हो रहा है। कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिव में लेट y इक्वल f ऑफ x, सेम क्वेश्चन, y इक्वल x स्क्वायर, x इक्वल ओके। देखो y के वैल्यू क्या चूज करना है फ्रॉम z, अगर z का वैल्यू सपोज देखो नहीं तो होगा पता है हमें, अगर y का वैल्यू 2 है तो √2 ये इंटीजर है क्या, अगर y का वैल्यू 2 है तो x का वैल्यू क्या √2 है, √2 इज नॉट इंटीजर, अगर x का वैल्यू -3 है खत्म, सब कुछ खत्म, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड इन द रियल नंबर और इंटीजर। ओके, सो देयर विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर विल कम, नो डाउट। सो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू z, y का वैल्यू z से चूज करो, देयर नॉट एग्जिस्ट x का वैल्यू z नहीं है। ओके, सो देयर नॉट एग्जिस्ट एन एलिमेंट x in z such that f of x equal y, hence it is not surjective, hence it is not surjective, that means bit 2 is not injective, also not surjective, clear? So this is your bit 2 का आंसर। so एक काम करो, also note it down, okay, then we will do question number bit 3। coming to bit 3 number, solution of bit 3 will write सेम क्वेश्चन और चेंज क्या है, सेट चेंज हो गया, नेचुरल था जेड था, अब क्या हो गया आर हो गया, रियल नंबर। सो सेम फंडा आई एम चूजिंग बिट 3, ओके, सॉल्यूशन बिट 3, एफ सच दैट आर टेंस टू आर, इट इज गिवन दैट आर टेंस टू आर, सेम क्वेश्चन, आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू आर, ओके, सेम। देखो x1 वैल्यू प्लस x2 भी माइनस x2 भी बोथ आर रियल नंबर है कि नहीं, रियल नंबर पे डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डेफिनेटली इट इज डिफाइंड ऑन रियल नंबर, नो डाउट, दैट मींस x1 का वैल्यू बोथ है, यहाँ पे प्लस x2 भी है माइनस x2 भी, इसलिए इंजेक्टिव नहीं है। इंजेक्टिव तब होगा जब एक ही वैल्यू आना है। सो x1 वैल्यू प्लस x2 भी है माइनस x2, इसलिए हेंस इट इज नॉट ऑल्सो इंजेक्टिव। कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्या है, सेम फंडा, नो प्रॉब्लम। देखो y का वैल्यू क्या चूज करना है, सेकंड सेट का एलिमेंट रियल नंबर, दैट मींस यू कैन टेक नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, एनीथिंग यू कैन राइट हियर। एक बात बताओ, अगर आई एम चूजिंग नेगेटिव नंबर, सो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड ऑन रियल नंबर, ये तो सबको पता है। सो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, y का वैल्यू r के लिए x का वैल्यू r है क्या, अगर y का वैल्यू -3 है तो स्क्वायर रूट ऑफ -3, ये तो कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया, इंटीजर क्या है, इमेजिनरी नंबर, दैट मीन्स √3 आई, ये तो पढ़ा है हमें फर्स्ट ईयर में। सो इट इज नॉट रियल नंबर, ओके। सो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, देन देयर नॉट एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इन फर्स्ट सेट क्या है r, फर्स्ट सेट भी आ रहा है, such that f of x equal y, hence it is not
सर्जेक्टिव। देखो बीट 3 भी ये इंजेक्टिव नहीं है, सर्जेक्टिव नहीं है, लेकिन बीट 1 जो था नेचुरल ये इंजेक्टिव था, बट इन बोथ केस इंजेक्टिव नहीं हो रहा है। सर्जेक्टिव तक दिस सेट में सर्जेक्टिव नहीं है, दिस सेट इज ऑल्सो नॉट सर्जेक्टिव, दिस सेट इज ऑल्सो नॉट सर्जेक्टिव। ओके, ये 3 सेट में सर्जेक्टिव नहीं है। ओके, सो नाउ वी कैन क्लियरली tell the bit1 bit3 bit3 same function, how it is changing from set to set we have discussed. Okay, so before that try to note it down. So coming to bit iv का आंसर क्या होगा? देखो यहाँ पे सेट नेचुरल है लेकिन फंक्शन थोड़ा चेंज कर दिया मैं, क्यू फंक्शन। ये क्या है? क्यू फंक्शन। नो प्रॉब्लम। iv देखो f such that n tends to n, नेचुरल सेट है, फंक्शन इज गिवन xq, you have to write 2 things in every question, already I have told. फर्स्ट इज चेक इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी के लिए फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट क्या है? n। सेम फंडा, आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग। टेक f of x1 इक्वल टू f of x2, अप टू दिस यू कैन राइट। आफ्टर दैट व्हाट विल डू? f of x1 का प्लेस में क्या पुट करना है? x1q। f of x1 के प्लेस में जस्ट टू राइट x1q इक्वल टू क्या है? ये x2q है। नाउ टेकिंग लेफ्ट साइड x1q माइनस x2q इक्वल टू 0। This is what AQ minus BQ formula. This is AQ minus BQ formula. पता है formula? A minus B into A square plus A plus B square. Just to write the formula. X1 minus X2. देखो AQ minus BQ. A minus B into A square plus AB plus X1 X2 plus B square X2 square. This equal to क्या है? 0 है. This is the formula AQ minus BQ का. Now tell me, this equal to 0 होगा और this देखो, this is the main concept. ये 0 कभी होगा कि? देखो क्योंकि देखो x1 का वैल्यू जो भी चूज करो ये पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर है, x2 का वैल्यू जो भी चूज करो ये पॉजिटिव होगा, श्योर है। लेकिन यहाँ भी देखो ये तो बड़ा है स्क्वायर, ये भी बड़ा है, ये मल्टीप्लाई करो, दैट मीन्स दैट इज वेरी स्मॉल नंबर विल कम एंड ऑल दिस एक्सप्रेशन टोटल विल पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव, इट विल नेवर नेगेटिव, दैट मीन्स इट विल नेवर 0। फर्स्ट थिंग इट विल नेवर 0, जो भी पॉजिटिव नो प्रॉब्लम, नेगेटिव नो प्रॉब्लम, बट my question is that this expression can be 0 क्योंकि नेगेटिव है। अगर ये x1 वैल्यू 2 है और x2 2 minus 2 0, बट यहाँ पे कभी भी 0 नहीं होगा क्योंकि ऑल आर एडेड, हाउ कैन बी 0? ओके, सो इसलिए क्या होगा यहाँ पे x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 होगा, बट x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इट नेवर बी 0, ये तो कभी भी 0 नहीं होगा। ओके, सो दैट मीन्स क्लियरली x1 इक्वल टू x2। देखो अगर x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 दैट मीन्स x1 इक्वल टू x2, हैंस इट इज इंजेक्टिव, और यू कैन राइट 1 1, इट इज इंजेक्टिव हो गया क्योंकि x1 इक्वल टू x2 आ रहा है। ओके, नाउ विल चेक व्हाट सर्जेक्टिविटी और ऑन टू सर्जेक्टिविटी। सो सर्जेक्टिविटी के लिए पता है हाउ टू राइट। फर्स्ट थिंग यू हैव टू राइट लेट y इक्वल टू f of x, लेट y इक्वल टू f of x, y इक्वल टू x cube, x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y, नॉट स्क्वायर रूट ऑफ y, इट इज क्यूब रूट ऑफ y। सो y का वैल्यू क्यूब रूट ऑफ y, और यू कैन राइट y का पावर 1/3 एज योर चॉइस। सो y का वैल्यू क्या चूज करना है? फ्रॉम सेट नेचुरल नंबर, दैट मीन्स y का वैल्यू सपोज 3 है। अगर y का वैल्यू 3 है क्यूब रूट ऑफ y, अगर y का वैल्यू 3 है, 3 का पावर 1/3, इज इट द x इज x कमिंग दिस, इट इज इन नेचुरल नंबर नहीं है। अगर y का वैल्यू नेचुरल लेना है, x का वैल्यू नेचुरल आएगा तो देन इट इज ऑन टू, बट फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n, y का वैल्यू नेचुरल के लिए x का वैल्यू नेचुरल नहीं है। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n, देन there not exist an element x in first set क्या है? n, such that f of x equal to y, such that f of x equal to y, hence it is
hence it is not surjective, hence it is not surjective. okay, it is your answer. ये इंजेक्टिव हो गया लेकिन सर्जेक्टिव नहीं होगा. ओके, ऑन द सेट सेम क्वेश्चन ऑन द सेट नेचुरल सेट में. ओके, सो बिफोर दैट ट्राई टू नोट इट डाउन. नाउ लेट्स सी बिट 5 का सॉल्यूशन क्या होगा. सेम क्वेश्चन है लेकिन सेट चेंज हो गया. क्या? इंटीजर हो गया. नेचुरल था, ये इंटीजर हो गया. सो जस्ट टू चेंज दिस इज v, बिट v का सॉल्यूशन. ओके, f सच दैट क्या है, z टेंस टू z. नेचुरल था, ये z हो गया. सेम फंक्शन. फर्स्ट चेक इंजेक्टिविटी फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट क्या है, z. सो इन प्लेस ऑफ n जस्ट टू राइट z. ओके, सेम क्वेश्चन, सेम आंसर इज कमिंग, नो प्रॉब्लम. सो x1 x2, so this is coming, x1 equal x2 is coming, no change. So clearly it is इंजेक्टिव. अगर x1 का वैल्यू x2 के बदल में अगर कुछ आता तो देन ये इंजेक्टिव नहीं होता. लेकिन यहाँ पे x1 का वैल्यू एक ही वैल्यू आ रहा है जो कि x2 है, इसलिए इंजेक्टिव होगा. नो प्रॉब्लम, नो चेंज एनीथिंग. कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, सर्जेक्टिविटी. सर्जेक्टिविटी में क्या होगा, लेट y इक्वल f ऑफ x, y इक्वल x को x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y. नाउ जस्ट टू चेक बाय योरसेल्फ, अगर y का वैल्यू z सेट में चूज करना है, y का वैल्यू which सेट, z सेट में चूज करना है, तो चूज करो. x का वैल्यू जो भी आ रहा है ये z सेट में है क्या, नहीं है. क्लियरली इट इज डिफाइंड. अगर y का वैल्यू 4 है तो 4 का क्यूब रूट, ये इंटीजर नहीं है. इसलिए for all y belongs to z, then there not exist. okay, then there not exist an element x in z such that f of x equal to y, hence it is not surjective. okay, so this is the solution of bit 5. okay, so just to note it down also. देखो, this is these 5 questions very important. First try to practice these 5 questions. You can get some idea how to solve, how to check injective and surjective for every question. That's why I am solving these 5 questions. Function I am not changing, only set I am changing. Then you can better understand. Okay, so don't take it lightly. This is very important. Exam में this procedure you will write. Don't change anything. Okay, then you will get good mark in the board exam. Okay, so before that, pause the video and note it down of the solution bit V. Okay, I think all of you clear how to check injectivity and surjectivity of the given any function. Okay. If you like this video, just to share, also subscribe my channel to get more update on the video. So after that, take care, bye bye.